सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। गोवा के मुख्य मंत्री वजों प्रमोद सावंत ने दूजी पार्टी शुरू की। राज सभा के मैंबरों ने वित्ती बिल 2022 ते चर्चा की। पंजाब विच राशन की डोर टू डोर सेवा शुरू की जाएगी। सीएम केजरीवाल तो बाद मनीष सिसोदिया ने भी कश्मीर फाइल्स नूं लैके दिता वड्डा बयान। राजिंदर पाल ने कश्मीरी पंडितां दे दंगिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बीजेपी ਦਾ ਕੀਤਾ पर्दाफाश। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। गोवा के मुख्य मंत्री वजों प्रमोद सावंत ने दूजी पार्टी शुरू की। प्रमोद सावंत ने सोमवार को लगातार दूजे कार्यकाल लिए गोवा के मुख्य मंत्री वजों सौ चुकी, जो कि तटवर्ती राज लिए चोण नतीजों के ऐलान तो 18 दिन बाद आया है। शानदार सौ समागम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। शुक्रवार को 7,000 लोगों तो वध भीड़ के सामने योगी आदित्यनाथ के सौ चुक समागम तो बाद भाजपा की ताकत का एक होर प्रदर्शन साबित होया। Honorable Governor, with your permission, sir, the proceedings may begin. Honorable Governor, with your permission, sir, the order of appointment of the Chief Minister may be read. Order dated March 21, 2022, and I quote, in exercise of the powers vested under Clause 1 of Article 164 of the Constitution of India, I, P.S. Sridharan Pillai, Governor of Goa, hereby appoint Dr. Pramod Sawant as the Chief Minister of the State of Goa. He will assume office from the date he is administered the oath of office and secrecy. Unquote. I request Honorable Chief Minister Designate Dr. Pramod Sawant to come and take the oath of office and secrecy. I request Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to Dr. Pramod Sawant. हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नात राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तरेच्या लोकांक हांव दिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाच्याच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळटले अशें कसलीय गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसात तितलेंच सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताच्या लागीं उक्ती करचो ना। Honorable Governor, with your permission, sir, the order of appointment of the ministers may be read. Order dated March 28, 2022, and I quote, in exercise of the powers vested in me under Article 164(1) of the Constitution of India, I, P.S. Sridharan Pillai, Governor of Goa, hereby appoint the following as ministers on the advice of the Chief Minister. 1. Shri Vishwajit P. Rane. 2. Shri Movin Gudino.
3. Shri Ravi Nayak. 4. Shri Nilesh Kabral. 5. Shri Subhash Shirodkar. 6. Shri Rohan Khonte. 7. Shri Govind Gode. 8. Shri Atanasio Monserrat. They will assume office from the date they are administered oath of office and secrecy. Unquote. I request Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the ministers designate. I request Shri Vishwajit Rane to come and take the oath of office and secrecy. I, Vishwajit Pratap Singh Rane, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Minister for the State of Goa, that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Vishwajit Pratap Singh Rane, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of the State of Goa, except as may be required for the discharge of my duties as such Minister. ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਰਤਾਨਮਨ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੁਚੀ ਸਿਵਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟ ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1 in today's revised list of business. Shri Sarbanand Sonawal. Honorable Chairman, sir, on behalf of my colleague Shri Sripat Yaso Naik, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against his name at serial number 2 of today's revised list of business. Shri Krishnapal ji. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। Shri Pankaj Chaudhary. सूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। Shri Rameswar Teri. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। Shri Bhagwant Kuba. महोदय, मैं आज के संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 6 पर मेरे नाम के सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखने का अनुरोध करता हूं। Dr. Bharati Praveen Pawar. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 8 in today's revised list of business. Thank you. Shri Dr. Bhagavat Karat. Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in the revised list of business for today at serial number 7. Sarbanand Sonawal. On behalf of my colleague Shri Santanu Thakur, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against his name at serial number 9 of today's revised list of business. Dr. Munjapara Mahendra Bhai. With your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned serial number 10 against my name in today's revised list of business. Message from Lok Sabha Secretary General. Report. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 28th of March 2022
pass the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022. I lay a copy of the said bill on the table. Statements of the Department Head Parliament Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, Sri Naresh Bansal. माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन 46वां प्रतिवेदन, 48वां प्रतिवेदन, 50वां प्रतिवेदन, 53वां प्रतिवेदन और वस्त्र मंत्रालय का 30वां प्रतिवेदन, 10वां प्रतिवेदन, 11वां प्रतिवेदन, 12वां प्रतिवेदन, 13वां प्रतिवेदन, 14वां प्रतिवेदन, 7वां प्रतिवेदन, 24वां प्रतिवेदन, 26वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखें। धन्यवाद। Honorable members, yesterday I have inaugurated an exhibition on the freedom struggle of India under the Azadi Ka Amrit Mahotsav by Indian Council of Historical Research at Dr. Ambedkar International Center. It's worth seeing, very inspiring, very interesting. I suggest to the members to visit it also. Then notice under Rule 267 by John Britas and also Vinay Viswam and Sri Sekhar Singh Goyal and also Dr. V. Sivadasan demand to discuss 12-point charter of demands raised by trade unions. This we are going to discuss labor and employment also in detail. Members can avail that opportunity and discuss these issues. I would like to, please, I'll give an opportunity to you. I'm coming to that. The impression is being created as if we are not allowing discussion. Question is, there are instruments, rules and regulations and procedures. There are issues that are already coming up in discussion. For example, price rise, petrol and diesel. This finance bill and appropriation bill. Detailed discussion is taking place. Many members spoke about it. Similarly, on labor and employment also, this strike and other issues can be raised. What are the demands and what is the solution, etc. But members can just mention the issue. John Britas, Vinay Viswam and Sekhar Singh Goyal. One minute, just. All nation is in strike, and we would expect the House to deliberate about the issues on which the country has gone to strike. Right. The lives and livelihoods of the people have been in great turmoil, and we expect the government to take. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ असर पूरे देश ते पवेगा। इसनूं पंजाब विच लागू किया जाएगा ते पूरा देश वेखेगा। पूरे देश के लोग इसकी मांग करनगे अते फिर इसनूं पूरे देश विच लागू किया जाएगा। सबको नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ, पंजाब के लोगों के लिए खुश हूँ, देश के लोगों के लिए खुश हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने आज बहुत शानदार ऐलान किया इस देश के गरीबों के लिए, पंजाब के गरीबों के लिए, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश पे आने वाले समय में इसका असर पड़ेगा। भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि पंजाब में गरीबों का राशन उनके घर घर तक पहुँचाया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, घर घर राशन योजना। अभी आज़ादी के 75 साल बाद भी एक गरीब आदमी को अपना गेहूं चावल महीने का जो राशन होता है जो सरकार देती है, वो राशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, ढेरों तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। आज ज़माना ये आ गया कि एक फ़ोन करो और फ़ोन के ऊपर ऑर्डर करो और पिज़्ज़ा आपके घर आ जाता है, सारा सामान आपके घर आ जाता है, लेकिन राशन लेने के लिए गरीब आदमी को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है।
तो घर घर राशन योजना के तहत लोगों का गेहूं या आटा या दाल जो भी है, चावल, वो अच्छी सी पैकिंग करके, बोरी में पैकिंग करके आपके घर का जितना भी बनता है वो आपके घर में सरकार हर महीने आपके घर में दे के आएगी। पंजाब के गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, तो मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ ये जल्दी लागू होगा, आज ऐलान किया गया है। दिल्ली में पिछले 4 साल से हम लोग इस योजना को, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को लागू करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सब कुछ हो चुका था, हमने सारा काम कर लिया था। केंद्र की भाजपा सरकार ने इसको रोक दिया, इसे करने नहीं दिया। ये सही नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैनॉट स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है। अब इसका आइडिया आ चुका है, इसका समय आ चुका है, तो ये तो लागू होगा। दिल्ली में नहीं लागू करने दिया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे। पंजाब में लागू होगा, सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा। जैसे आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, पूरे देश में बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो जो चीज़ें लागू कर रहे हैं, पूरे देश में लागू होती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के कामों को रोका गया, किस तरह से हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे, मोहल्ला क्लिनिक को 2 साल तक रोक दिया, लेकिन फिर बनाए हम लोगों ने। सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगाना चाहते थे, उनको 3 साल तक फाइल रोक दी केंद्र ने। स्कूल बनाना चाहते हैं उनको रोका जाता है, अस्पताल बनाना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है। पिछले 75 साल से इस देश के लोगों को रोका गया, हर कदम पे रोका गया। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग विकास करना चाहते हैं, लोग प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है। इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इस देश के लोगों में बहुत टैलेंट है, इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको 75 साल से रोका जा रहा है। लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं, अब लोगों ने ठान लिया, अब लोग खड़े हो गए हैं। 2 राज्यों के अंदर लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बना दी है। अब ये देश तरक्की करेगा, अब ये देश आगे बढ़ेगा। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ, सभी ताकतों को कहना चाहता हूँ जो इस देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप जो मर्जी कर लीजिए, अब ये देश रुकने वाला नहीं है। नमस्कार। सीएम केजरीवाल तो बाद मनीष सिसोदिया ने भी दी कश्मीर फाइल्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀष सिसोदिया ਹਨ। 8 साल से चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे जो हुआ, जगमोहन जी के समय पे जो हुआ, उन्होंने काफी जिक्र किया, वो बीते समय की बात है। पर 8 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई साल से दोनों जगह कश्मीर में भी और यहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है सेंटर में। सवाल यह है कि इस देश के हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों को इतने लंबे समय तक 32 साल बाद भी विस्थापित बनके क्यों रहना पड़ रहा है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लिखती आई है कि हमको सत्ता दे दो, हम कश्मीरी विस्थापितों की मदद करेंगे, उनका पुनर्वास करवाएंगे। वो मैनिफेस्टो का झूठ, उसका सच क्या है? वो क्यों कामयाब नहीं हुए ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग?
सौरभ भाई ने यह प्रस्ताव रखा सदन के समक्ष, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की, पूरी भारतीय जनता पार्टी की इसमें घोर असफलता है और इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए कि 8 साल तक आपने कश्मीरियों के दर्द पर राजनीति, 32 साल से राजनीति करते आए हो, 8 साल से आपके हाथ में मौका है। आपको एक एक कश्मीरी भाई को, एक एक कश्मीरी बहन को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि वो जाके अपने कश्मीर में अपने जमीन जायदाद तो देखा है। हो सकता है कहीं भी अध्यक्ष महोदय 32 साल तक हम रहने लगते हैं तो बहुत सारे लोग विस्थापन के क्रम में रहने का मन बना लेते हैं। आज जो दिल्ली में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, मैं सैकड़ों ऐसे परिवार मेरे मित्र हैं जो दिल्ली और नोएडा में रह रहे हैं और व्यक्तिगत मित्र हैं, राजनीति में आने से पहले मेरे मित्र हैं। आज बहुत सारे लोग हो सकता है कह दें कि भाई हम तो दिल्ली के हैं, हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी उनके दर्द मैं जानता हूं। उनका दर्द यह है कि जो हमारी बारापुला में जमीन थी, जो हमारे बाग बगीचे थे सेब के, जो हमारे बादाम के खेत थे, पेड़ थे वहां पे, जो हमारा एक सुंदर सा वादी में घर होता था, हम कम से कम उसको जाके देख तो आए वो किसने पे कब्जा कर रखा है, वो हमको कब्जा तो छुड़ा के दे दे सरकार, हम उसकी कुछ लिपाई पुताई तो कर दें। हम कम से कम ये तो कह दें अपनी तीसरी पीढ़ी को, 32 साल में तीसरी पीढ़ी खड़ी है, हम अपने बच्चों की उंगली पकड़ के दिखा तो आए कि कभी हम इस घर में पैदा हुए थे। इतनी व्यवस्था तो कर दें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 8 साल से सरकार में है। आज कश्मीरी क्या चाह रहा है? 32 साल से अपने देश में विस्थापित होकर दर्द झेल रहा है। वो ये चाह रहा है कि भाई 32 साल से उसको दुख हुआ तो हमेशा दिल्ली ने मदद की है, अलग अलग राज्यों में जहां जहां वो गए वहां से उनको मदद मिली है कि हमें फौरी तौर पे हम विस्थापित होकर आए, हमें मदद मिले। दिल्ली सरकार भी 3250 रुपए प्रति व्यक्ति लगातार दे रही है। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोगों को 3250 रुपए मिल रहा है। लेकिन वो तो एक अलग चीज है। दूसरा वो चाह रहा है भाई अब हमारे ऐसी सरकार है जो चाहती है कि कश्मीरी पंडित का विस्थापन हो। आज दिल्ली में मैंने सुबह अपने विधायक साथियों से पूछा, मेरी विधानसभा में भी रहते हैं लोग, पंपोश एन्क्लेव में रहते हैं, हर कई सारे साथियों ने बताया कि कहीं 150 परिवार, कहीं 100 परिवार, कहीं 200 परिवार, कहीं 500 परिवार रह रहे हैं। कुलदीप ने भी बताया हर जगह रह रहे हैं। वो दिल्ली वाले हैं, वो देश के हैं, वो दिल्ली के हैं, लेकिन उनका एक टीस ये है कि भाई वो हमारी जो जमीन हुआ करती थी, क्या हम उसे अपना कह सकते हैं जाके? क्या हम उसी स्वतंत्रता से जो 89 से पहले की अपना पंथा वहां जाके रह सकते हैं? 32 साल बाद भी अगर हम नहीं कर पाए तो इसमें केंद्र सरकार की घोर निंदा होनी चाहिए। और 8 साल भारतीय जनता पार्टी की असफलता है, इसीलिए उठ के भाग गए यहां से, क्योंकि हर बार मैनिफेस्टो में लिखते हैं कश्मीरी फाइल पर बात करो तो चिल्लाते हैं और कश्मीरियों पर बात करो तो उठ के भाग जाते हैं, क्योंकि जवाब नहीं है, क्योंकि नियत भी नहीं है। जवाब कुछ किया नहीं है, ये तो है ही है, नियत भी नहीं है। कश्मीरियों के लिए कैसे कुछ काम किया जाता है, इसको अरविंद केजरीवाल जी से सीखिए। 32 साल सौरभ भारद्वाज जी ने जिक्र किया, लगभग 25 साल तक कश्मीरी टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते रहे दिल्ली के स्कूलों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 93 से लेके 98 तक भी रही, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही। 1 साल अरुण जेटली जी ने बजट भी रखा दिल्ली की तरफ से, इनका बीजेपी का ही शासन रहा 1 साल, लेकिन उसके बावजूद उन कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट करने की इन्होंने फाइल तक नहीं चलाई और कश्मीरी टीचर्स धक्के खाते रहे। बहनें हमारी धक्के खाती रही। मिसेस नैना, मैं जानता हूं, मुझे अभी भी शक्ल याद है उनकी, रोने लगी, बोली हमने एक तो अपना घर छोड़ा, जमीन छोड़ी, इतने अच्छे स्वर्ग में रहते थे, उस स्वर्ग को छोड़ के हम आए और उसके बाद हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। बीजेपी के नेता मिलते तक नहीं थे उनसे, कश्मीरी टीचर्स से। उनको एक मीटिंग में सौरभ भारद्वाज जी मेरे पास में लेके आए थे, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जिक्र किया कि इस तरह से मेरे पास में करीब एक रिप्रेजेंटेशन लेके 25-30 टीचर्स आए हैं, उसमें से कम उस वक्त 250 के करीब टीचर्स की बात थी कि 250 टीचर्स के करीब हैं। तुरंत एक शब्द सुन के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये इनके साथ अन्याय हो रहा है, तुरंत इनको परमानेंट करने की व्यवस्था की। और तुरंत बहुत हाईवे स्पीड से सारे के सारे कश्मीरी टीचर्स तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 25 साल से धक्के खा रहे थे परमानेंट होने के लिए, तुरंत 233 संख्या थी उनकी, 233 के 233
25 साल से जो कश्मीरी दर्द झेल रहा था, विस्थापित होकर दिल्ली में और कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर रहा था और कभी भी उसको हटा दिया जाता था, उसकी सेवा करना हमारी राजनीति है। तुम्हारी राजनीति जो है उस पर 200 करोड़ कमा लिया और कमा लो। और क्यों धक्के खा रहे थे वो? क्योंकि कश्मीर से आए थे। जैसा ऋतुराज जी ने कहा, अचानक आनन फानन में निर्देश दे दिया गया, छोड़ दो, वादी छोड़ के चले जाओ, घाटी छोड़ के चले जाओ। उनके पास में उस होशो हवास में आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं था कि वो अपनी कोई डिग्री उठाते, कोई नौकरी का सर्टिफिकेट उठाते, कोई कागज उठाते घर का। वो तो चल दिए उठा के, 2 कपड़े उठा के, जिसके पास थे, या नहीं भी हो सकता है वैसे ही भाग गए होंगे। किसके पास फुर्सत थी कि कागज लेके आते? और यहां नॉर्मली जो गेस्ट टीचर भी यहां लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लगते हैं, सबके पास में अपने सर्टिफिकेट होते हैं। उनको हमेशा धमकाया जाता था 25 साल तक कि तुम्हारे सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। उनका दर्द यह था। और केजरीवाल जी की सरकार ने निर्णय लिया, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि ये हमारे भाई बहन हैं। 1989 में, 90 में इनके साथ जो हुआ, वो इस देश की जिम्मेदारी है कि उस जख्म को मिलके भरा जाए। इसलिए निर्णय लिया कि उसको बिना सर्टिफिकेट के, बिना कुछ पूछे गए, सबको परमानेंट किया गया। मिसेस रैना जिनका जिक्र है, वो धन्यवाद देने आई थी और बाद में उन्होंने बहुत अनुरोध किया था। मैं कहीं व्यस्त था, मेरा मन था कि सबके पास जाऊं। एक और जब इनकी बात जिक्र हो रही थी तो एक और मैडम अध्यक्ष महोदय, परमानेंट होने के बाद, क्योंकि बहुत लोगों की अलग अलग उम्र थी, रिटायर भी हुए, तो एक टीचर थी, वो रिटायर हुई। मैंने उनका नाम कहीं अभी लिखा था। ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਤੱਕ ਦੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। उनकी दुख दर्द पे बोलने का मौका दिया। ये बेहद दुख की बात है कि कोई पार्टी विशेष किसी के जख्मों को भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। निश्चित तौर पर किसी के साथ भी दंगों में कोई भी लोग मारे जाएं, वो किसी भी जाति और धर्म के क्यों ना हो, उनकी बात होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको रिहेबिलिटेशन किया जाना चाहिए। लेकिन उनको रिहेबिलिटेशन करने की बजाय उनके जख्मों को बार बार किरोदा जाए, उसको राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। और ये बहुत ही घटिया टाइप की पॉलिटिक्स है जो नहीं करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के साथियों से जो अब सदन में मौजूद नहीं है लेकिन बाहर से सुन रहे होंगे, इससे पहले इनकी भी सरकार दिल्ली के अंदर रही, कांग्रेस की भी सरकार दिल्ली के अंदर रही। उस वक्त भी कश्मीरी जो शिक्षक थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको रेगुलराइज करने का काम बीजेपी या कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। उनको रेगुलराइज करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। केवल दिखावा और ढोंग करने से काम नहीं चलेगा। आपको सच्चाई के साथ पीड़ित लोगों के साथ खड़ा होना होगा। न केवल उनको मरहम लगाने की जरूरत है बल्कि उसके साथ साथ उनको पुनर्स्थापित करने की भी जरूरत है। आज इसमें सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। ये आरटीआई के माध्यम से जवाब मिला है 27/11/2021 को। इसका जवाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर ने दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 1990 में टेररिस्ट अटैक के द्वारा 89 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई और उसके बाद विस्थापन हुआ। बीजेपी इसको बार बार राजनीतिक फायदे के लिए भुनाती आई है। मैं बीजेपी से भी और दूसरी पार्टी कांग्रेस वगैरह उनसे भी पूछना चाहता हूं कि 89 कश्मीरी पंडित मारे गए और उसी अटैक में
1635 नॉन कश्मीरी पंडित मारे गए। तो क्या केवल 89 की बात होनी चाहिए? 89 की भी बात होनी चाहिए, उनको भी रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो 1635 दूसरे लोग मरे हैं, क्या उनके दुख दर्द पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह न्याय होगा? और उसमें भी वहां जो दलित और पिछड़े रहते हैं, क्या उनके विस्थापन पे या उनके साथ जो अत्याचार वहां हुआ उसके ऊपर, उनके लोग जो मारे गए उसके ऊपर, क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? उनको तो कोई मुआवजा भी नहीं दे रहा। वो तो जहां क्लस्टर में रह रहे हैं वहां उस मकान पूरी जिंदगी बीत गई, उसको उसका मकान का हक भी नहीं मिल रहा। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए अध्यक्ष जी। और साथ साथ आपके माध्यम से मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये मौका है, इस सदन के माध्यम से सच्चाई पूरे देश के सामने आनी चाहिए। किसी के साथ भी जुल्म हो तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसके मुद्दों पर बोलें। आपको याद है गुजरात के अंदर जिस तरह ट्रेन के अंदर जो लगभग 80 के करीब लोग जलाए गए। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ, जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, मन चाया प्यार, घरेलू कलेश, कीता कराया कारोबार विच घाटा, विदेश विच पक्के ना होना, माता पिता मनाउणा, लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ, सौतन दुश्मन छुटकारा, धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो। मोबाइल नंबर 97797 19721 97797 19721।